उत्तर प्रदेश के बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में सामने आया है कि महाराजगंज में रविवार को जो हुआ वो सुनियोजित था, यानी उसकी प्लानिंग काफी पहले हो चुकी थी। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद की छत पर पत्थर और ईंटें रखी हुई थी, कांच की बोतल भी मिली थी। बता दें कि राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में पकड़ा, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए हैं। बहराइच के महाराजगंज में हुए हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों का एनकाउंटर हो गया। इसके बाद का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी पहले कहता है कि गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। इस पर एक आरोपी कहता है कि अब गलती कभी नहीं करेंगे, हम लोग फायर करके भागना चाह रहे थे। सुनिए ये बातचीत। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो तो नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे। चलो गाड़ी को बैठो। महाराजगंज कस्बे में रेहुआ निवासी रामगोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या के बाद भी हत्या आरोपियों के मंसूबे खतरनाक थे, तभी तो उन्होंने हत्या में प्रयुक्त बंदूक को लोड कर छिपाया था। उसके साथ ही एक अन्य अवैध असला भी रखा था, ताकि जरूरत पड़ने पर वो फिर से दहशत फैला सकें। इसका प्रमाण भी उन्होंने पुलिस की टीम पर फायरिंग करके दिया। पुलिस ने नानपारा बाईपास पर हांडा बसेहरी नहर के पास आरोपियों की घेराबंदी की, जहां पुलिस और आरोपियों के बीच जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें 2 आरोपी घायल हो गए। आरोपियों के नाम मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने इस पूरे एनकाउंटर के बारे में टाइम्स नाउ नव भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा था, सुनिए। मोहम्मद सरफराज alias रिंकू, अब्दुल हमीद and Mohammad Afzal, Farheen and Mohammad Talim. The information that I have is that 2 of them have received minor injuries during shootout with the police. They have been rushed to the local hospital. A total of 5, the ones that I have named, have been arrested. Okay. So, and they are the ones who are wanted in the murder that led to this communal conflagration. Okay, sir, if you could also, Mr. Yash, if you could also confirm to us how many of these accused were there on spot, because this is a developing story. What happened in the operation? What was the information that the teams on the ground got that led to this kind of an operation near the Nepal border? I don't have the details with me because I haven't yet spoken to the officers concerned. Let me first get to them, and once I have confirmed the entire chain of events, I'll be able to clarify. Mr. Yash, just I'll one more question. How many of the accused were trying to flee? If you could just confirm that for us once again. It seems that they have all been caught together. Okay. So they might have been trying to escape across the border. And how many of them? We are talking about 3 to 4 or 2 to 3? The information that I have is that 5 of them have been arrested. Okay, so 5 of them. That's a big that's a big breaking news update that you're giving us, sir. 5 accused who were trying to flee. They were apprehended by the teams on the ground, by the police teams on the ground, and that is when this encounter took place. Any information that you have on why the encounter took place, when they were asked to surrender? Because source-based information that we've gathered so far is that they were asked to surrender and then they opened fire. What exactly happened? If you could give us some details on the chain of events. See, I don't have the details myself because I am yet to speak to the officers concerned. Once I have a word with them, I'll be able to give you the details. Okay, Mr. Yashan, before I let you go, you have more information about the investigation, a lot of details, and meticulously the teams of the STF are also working on the ground. Do you suspect a larger conspiracy behind what happened in Behraich? The investigations are still on. I would not be able to comment on that. Okay. Thank you so much, Mr. Yash, for joining us. यूपी पुलिस ने मामले पर बयान जारी करते हुए कहा कि रविवार को महाराजगंज में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने के केस में बहराइच पुलिस द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मोहम्मद फहीन, मोहम्मद तालीम, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद हमीद और मोहम्मद अफजल हैं। पहले 2 की निशानदेही पर मर्डर में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए
जब पुलिस टीम लेकर गई तो इनके द्वारा वहां रखे हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में दोनों को गोली लगी, दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, उनका उपचार कराया जा रहा है। ये यूपी पुलिस का बयान था जो हमने आपको पढ़कर सुनाया। हत्या में उपयोग किया गया हथियार बरामद हो गया। इस बारे में एसपी वृंदा शुक्ला ने क्या जानकारी दी वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी जिसमें युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा मैम, एक चीज जानकारी थी, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी तो सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी बिल्कुल जारी रहेगी। जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही। वहीं बहराइच में जिस मकान मालिक अब्दुल हमीद पर राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाने का आरोप है, उसकी बेटी रुखसार बता रही है कि उसके पिता अब्दुल हमीद और 2 भाइयों को यूपी STF एक दिन पहले ही उठा कर ले जा चुकी थी। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को STF की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ।